अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे and how it actually got its name from a piece of jewelry which is literally an amber. And whenever we're saying electricity, we're not referring to अजीब से कहते हैं shocks वगैरह. We're actually referring to a piece of jewelry, a literal piece of jewelry. अच्छा, तो बात हमारी यहाँ पर सारी शुरू होती है एम्बर से. And मैं बताती चलूँ कि the first few lectures or like the first 10 or maybe 15 videos are purely going to be based on history, and then we're going to move on to the syllabus point of view, because without the history you're actually super dumb and you're going to end up making the same mistake a guy did in the 1600s. So let's not be that dumb and let's try to learn the history first. तो हम बात शुरू करते हैं. We're going to first start with our trusty little timeline जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. अच्छा, इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेन फोकस रखेंगे. फर्स्ट we're gonna learn about the amber effect, and then we're gonna learn what did Thales say, and after 2000 years of Thales, what did William Gilbert do. अब हम बात शुरू करते हैं. We're gonna start with the amber. Where is my amber? Yeah. अच्छा, somebody rubbed the amber with a piece of fur, and in return the amber started to pick up little pieces of feathers. अब एम्बर ने जब ये फेदर्स उठाए ना, द गाय वेंट क्रेजी एंड ही वाज लाइक डूड व्हाट जस्ट हैपेंड, और ये मुझे सबको बताना पड़ेगा. इस बात की किसी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि व्हाई डिड द एम्बर पिक अप फेदर. तो मैजिशियंस वर लाइक, वी नो दिस इज व्हाट मैजिक रियली इज. मैजिक इज रियल. अगर नहीं यकीन आ रहा, जाओ एम्बर को कर लो, ठीक है. तो म्यूजिशियंस का तो सही बिजनेस चमक गया और कहते हैं वो लोग सही अच्छा कमाने लग गए. एंड देन देयर वाज अ गाय कॉल्ड थेलीस. ही वाज इन 400 BC गाइस, 400 BC. और इस ज़माने में ना फिलोसफी उरूज पे थी, मतलब अपने फुल ऑन राइस पे थी. अच्छा, इसने बड़े मज़े की बात की ना. इसने कोई लॉजिकल रीजनिंग दी नहीं, इसने कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं. इसने बस बोल दिया कि everything is full of God. मतलब हर चीज़ में खुदा है, and amber is a part of God, and because God can do anything, that's why the amber picks up pieces of feather. And it's like the most ridiculous statement I've ever heard. और फिर इसके बाद people were like, this is so logical and this is what we needed. We just needed to know that everything is full of God. और फिर थेलीस ने ये बात कही and everybody stopped thinking about the amber effect. Literally after 2000 years ago, after actual 2000 years ago, 1600s में there was this guy named as William Gilbert. William जो था, he was a renaissance man. मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट के ज़माने के लोगों को renaissance people कहते थे. और it's not the same Queen Elizabeth who died like 1 year back. It's the old one, जो पुरानी वाली क्वीन थी. उसके ज़माने में 1600 में विलियम गिलबर्ट आया. विलियम जो था मैग्नेट्स के पीछे पागल था. ही वॉज क्रेजी अबाउट दैम. और रेनेसांस के सब लोग मैग्नेट्स के पीछे इतने बुरे पड़े हुए थे कि they were like, this is the new revolution, we have to learn about this. अच्छा, तो and these guys were like literally crazy about the amber effect and everything. अब होता ये है कि विलियम जो था ना, he was, इसकी मज़े की बात बताती हूँ, he was literally queen's doctor. और it's kind of hard to imagine a doctor at that time because the doctors used to wear these clothes. और वो लोगों का इलाज इस तरह करते थे कि they used to give them mild poisons, give the patients mild poison, या फिर उन patients का खून निकाला करते थे. So that's some crazy things happening over there. अच्छा, अब विलियम जो था, he was Queen's personal doctor. He wrote a book on magnets, और उसमें उसने बताया कि उसमें एक नई इन्वेंशन के बारे में उसने एक एक्सप्लेनेशन दी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था. People used to use it all the time, but people didn't know how it works. तो उस ज़माने की इन्वेंशन जिसको विलियम ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया था, that was literally a compass. और कहते चाइनीज़ ने, I don't know how to spell Chinese, damn. And the Chinese people created a compass, but they didn't know how it worked.
पर उन्हें ये पता था that it works. So people were like, okay, bye, we're just not gonna know how it works and live on with our lives. But William was like, no, I'm gonna give a logical reasoning behind all this. So he wrote in his book that the compass needle moves because the earth is a giant magnet. And now you guys will be all like कि यार सब लोग कोई ना कोई आता पुराने ज़माने में and they're like they give like a statement and they move on with their lives. But ये जो statements थी ना that कहते हैं everything is full of God, ये magic is real, they were all philosophy based reasonings. But this was the one time that a person gave like a logical reasoning and he had like answers to all the questions people had. ठीक है, तो अब he was like the earth is a giant magnet. Now what does this actually mean? Like earth is a giant magnet. अब मैं क्या करूँ इस बात का, मैं क्या करूँ? earth giant magnet है मतलब उसके बीच में बार magnet है. Excuse me, what? तो अब हम इसको सोचने के लिए ना we're actually gonna put a bar magnet between the earth so you guys can like imagine the earth being a giant magnet. अच्छा, तो अब होता ये है that he said the earth is a giant magnet, मतलब नॉर्थ से साउथ तक कहते हैं हमारा फील्ड लाइन जा रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और हमें ये तो पता है कि लाइक रिपेल, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ठीक है. हमें ये तो पता है लाइक रिपेल ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, मतलब नॉर्थ के पास आएंगे तो रिपेल करेगा एंड नॉर्थ साउथ के पास आएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा. तो अब हम सोचते हैं कि what is a compass? A compass is nothing but a magnet on a pivot. अब pivot का मतलब क्या है? Pivot is a point. जैसे कि आप कहते हैं अपनी सुई के ऊपर एक मैग्नेट को ऐसे बैलेंस करवाओ कि वो इधर से भी ना गिरे और इधर से भी ना गिरे, और उस मैग्नेट को अपनी मर्ज़ी से घूमने फिरने की इजाज़त हो. तो अगर आपने कभी अपना कंपास खोल के देखा हो, कंपास को हाथ में भी पकड़ा हो और घूमना शुरू कर दो, या अपने फ़ोन के अंदर कंपास की ऐप डालो और घूमना शुरू कर दो, तो वो कंपास खुद ही घूमना शुरू हो जाएगा और वो क्या आपको बताएगा कि किस तरफ नॉर्थ है और किस तरफ साउथ है. तो अब इस हम छोटे मैग्नेट को हम पकड़ेंगे एंड वी गोना पुट इट ऑन द अर्थ, हमारा अजीब सा अर्थ. अब हमने इसको यहाँ पर रखा है, ये सोचो कंपास है, एंड देन इट्स अलाउड टू मूव एनीवेयर. अब ये करेगा ऐसे कि I told you guys earlier कि opposites attract and like repel. तो ये करेगा ये कि ये घूमना शुरू हो जाएगा जैसे हमारा कंपास एक्चुअली में घूमता है, और ये घूमता तब तक रहेगा जब तक ये अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ अलाइन नहीं कर लेता. और जब ये अपने आप को अलाइन करेगा अपनी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरफ, तब वो जाके रुक जाएगा. ओपन द कंपास ऐप इन योर फ़ोन एंड ट्राई दिस, और देखना है कि लाइक वो एक जगह पर आकर रुक जाता है. और जब आप खुद घूमते हो, अपना फ़ोन को लेकर घूमते हो, तो वो उसी तरफ पॉइंट कर रहा होता है जहाँ वो पहले कर रहा होता है, चाहे आप उल्टा मुँह करके खड़े हो. एंड दिस इज़ हाउ अ कंपास नीडल वर्क्स. और उस इंसान ने 1600 में ये बात कह दी, द अर्थ इज़ अ जाइंट मैग्नेट, एंड टू दिस डे 2023 तक हम इसी बात को मानते हैं. दिस वॉज विलियम्स एक्सप्लेनेशन फॉर द कंपास. ठीक है, अब बात क्या होती है. अब he was like so crazy about the magnets that when he found out about the amber effect, he was like, I think this is a type of magnetism. जब उसके दिमाग में आइडिया है कि these both can be related to each other, तो उसने ना दुनिया की हर चीज़ पकड़ के ना, मतलब अब हर चीज़ तो नहीं, but like from waxes, diamonds, everything, he started to rub them all. और फिर वो एंड में कंक्लूजन पे ये आया कि amber effect and magnets, they both are two different things and they are not related. अब वो कहता है कि how are these two things different. अब हम ना कहते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि उसने क्यों कहा था कि these two things are not the same thing. तो he was like, amber effect के लिए हमें कोई दो चीज़ों को रब करना पड़ेगा. डैम हमें दो चीज़ों को रब करना पड़ेगा. एंड मैग्नेट्स दे आर परमानेंट. कभी किसी ने देखा है किसी इंसान को मैग्नेट्स को रगड़ते हुए एंड देन ही कहते पिक्ड अप द अदर मैग्नेट और सम काइंड ऑफ मेटल? नहीं ना, क्योंकि दीज मैग्नेट्स आर परमानेंट, दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ रबिंग. अब इसके बाद द एम्बर इफेक्ट
It does not work underwater. And the magnets, they work underwater. अब उसने ये बात कह दी और उसने ये भी बात कही कि the amber effect, it does not work that well on humid days or works better on dry days, and it does not literally works underwater. इसकी हम explanation बाद वाली वीडियोस में देंगे. और मैग्नेट्स जो होते हैं इनको तो वेदर का कोई मसला ही नहीं है ना, कि कुछ भी नहीं है, अंडर वाटर भी काम कर लेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद उस बेचारे से एक गलती होगी. He said the amber effect only attracts. That the amber effect only attracts, while the magnets, they attract and repel. अब हमें इस ज़माने में आके ये तो पता चल गया that the amber effect not only attracts but it repels as well. तो उस बेचारे से ये गलती हुई कि he said that the amber effect only attracts but it repels as well. और this was William's biggest research. और अब विलियम ने कहा कि एम्बर इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म, दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, सो व्हाई शुडंट आई नेम एम्बर इफेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तक किसी ने काम ही नहीं किया ना, एम्बर इफेक्ट को नाम ही नहीं दिया, सब लोग एम्बर इफेक्ट बोलते रहते थे. तो ही वाज लाइक लेट मी जस्ट नेम इट. उसने कहा एम्बर इफेक्ट का कुछ और नाम क्या सोच सकता हूँ. सो ही वाज लाइक कि एम्बर इफेक्ट का ओरिजिन क्या है, एम्बर. सो लाइक एम्बर इफेक्ट का ओरिजिन क्या है, एम्बर. ठीक है, एक बात पक्की. उसने ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ना हम नया ट्विस्ट देते हैं. ही वाज लाइक चलो बस इसका ना ग्रीक वर्ड एम्बर का रख लेते हैं, इसका नाम ग्रीक वर्ड ना, हम एम्बर को सर्च करते हैं क्या है. उसने कहा देखा कि ग्रीक वर्ड एम्बर का क्या है, इट वाज लिटरली इलेक्ट्रॉन. और आज हम कहते हैं, और इसे जब लैटिनाइज किया गया और फिर इसके बाद जब इसे इंग्लिश में लेकर आए तो हम इसे लिटरली इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. And this is how electricity got its name from a piece of jewelry, which was the amber. And this is why whenever we're saying electricity, we're actually referring to an amber. I think this is a wrap for today's video. Thank you for watching, and I'll see you in the next video lecture. Until then, Allah Hafiz, bye bye.